सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों ने सीएसएस का लास्ट लेक्चर देख लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि सीएसएस में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्वेरी सेलेक्टर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। कितने टाइप्स के क्वेरी सेलेक्टर्स होते हैं। क्वेरी सेलेक्टर क्या होते थे गाइस? डिफरेंट डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट ऑफ एचटीएमएल पेज। ठीक है। अब हम आज गाइस सीखेंगे सीएसएस में कलर्स के बारे में। ठीक है। तो सीएसएस में कलर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। बहुत बेसिक तो हमने सीखा था कि कलर की प्रॉपर्टी नेम, जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद फिर उसका कलर नेम। बट गाइस हमारे पास कलर को डिफाइन करने के लिए वेरियस मेथड्स होते हैं, और मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा वो मेथड कौन कौन से हैं, और फिर मैं ये भी सिखाऊंगा कि जो मोस्ट रिलायबल मेथड है वो कौन सा है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in Triple IT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA where coding becomes accessible. Okay guys, so हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। मैं अपना स्पीच थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। Volume 8, voice of very rate 45, rate 35, rate 40. ओके। वैसे गाइस बैकग्राउंड में मशीन चल रहा है, तो अगर आवाज़ आए तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मैं एक काम करता हूँ, ये विंडो क्लोज कर लेता हूँ। ओके गाइस, फाइन। शायद आप थोड़ी वॉइस कम आएगी, बाकी मैं नॉइस कैंसलेशन लगाने का ट्राई करूँगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो मैं यहाँ पे जो है वो अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। Run dialog, type the name. D colon. Local disk left parent. D colon. Local disk left. Yahoo coding to. Items view list. CSS not select P hyphen 2 of 2. CSS 1 of 2. यस यस, यहाँ पे आता हूँ Items view list. Lecture 1 not selected 1 और of यहाँ 2. पे लेक्चर 3 क्रिएट करता हूँ। New folder edit. E C C E L L E C T U E 3. लेक्चर 3। Lecture 3 3 of 3. Cut alt T. इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, इस फोल्डर को। Copy alt CC rename delete pop open pin to start off pin open a new window alt open a new tab alt open pin to compress copy of properties OneDrive to open determine open with code alt I11 of 12. Items view list lecture 3 3 of 3. Visual Studio Code window document. ओके Application chat input left parent agent right parent edit files in your workspace. New notification set dismiss this notification space new notification from op lecture toolbar add context left parent ठीक है। CSS dash मैं CS फाइल एक्सप्लोर को क्लोज कर लेता हूँ। lecture 3 dash अब मैं यहाँ पे इसका फाइल एक्सप्लोरर files में जाता explorer हूँ preview VS कोड के, और यहाँ पे जो है वो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, 2 फाइल यहाँ बनाता हूँ। menu new file 1 new folder new file 1 files explorer INDEX index HTML files explorer main landmark index.html files explorer दूसरी फाइल बनाता menu हूँ। open with live server alt plus L explorer new folder button new file button files explorer preview type file STYLEHEET style sheet error CSS CSS index main landmark style sheet.css editor as on ओके गाइस, और मैं दोनों फाइल को लिंक कर लेता हूँ। ठीक है। list index.h main landmark index मैं blank पहले थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ VS कोड को। blank आई थिंक इतना काफी होगा। console is 10.5 pt light gray on black blank मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.html editor as autocomplete multi टेम्पलेट ओपन हो गया। less meta chart less meta less title greater document less T I T L E greater D document selected C S S S space O R S R S space T U level 1 O R I L ट्यूटोरियल। less title greater CSS colors tutorial less slash title greater ठीक less है। meta name line feed और मैं यहाँ पे लिंक करता L हूँ। N K link property docs colon index.html editor as autocomplete multi-line less link space suggest list index.stylesheet.css file index.html editor as और यहाँ पे गाइज मैंने जो है वो इस फाइल को लिंक कर दिया। अब गाइज मैंने, आप लोग बोलोगे, आप लोगों में से कुछ लोग कि मैंने सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट किया, तो गाइज ये सारी जो काम है वो मैंने करके ऑलरेडी दिखा दी है प्रीवियस वीडियोस में, मैंने क्या क्या किया मैं बता देता हूँ। पहले तो ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं पहले तो VS कोड यूज कर रहा हूँ। तो पहले तो VS कोड क्या होता है आप लोग वो जा करके देखिए एक बार। ठीक है। अगर आपको HTML नहीं आता तो CSS सीखने में कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर HTML आता है तो मैं VS कोड में कोडिंग कर रहा हूँ, तो VS कोड की वीडियो मेरे चैनल पर पढ़ रखी है, वो आप लोग जा करके देखिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा मैं, ठीक है, इस वीडियो के VS कोड का। सेकंड थिंग कि CSS के आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर एक बार फॉलो करिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि HTML CSS को कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं जो है क्वेरी सिलेक्टर्स के बारे में बताया। तो ये 2 लेक्चर्स करके आइए कंप्लीट, तो ही फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं आज कलर्स में क्या बताने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं बेसिक चीजें मैंने कर दी। एक index.html फाइल क्रिएट कर दिया, एक मैंने stylesheet.css क्रिएट कर दिया, और जो stylesheet.css है उसको मैंने index.html में लिंक कर दिया। अब मैं यहाँ पे मेन कंटेंट ऐड करता हूँ, जैसे कि less title less slash less dot blank
H1 suggest list index.ht double E index.l O M E home space T2 C S index space C O L O R S space T U list items O suggest list R I A L Ryle index less H1 grader welcome to CSS colors tutorial less slash H1 grader line feed ठीक है। और यहाँ पे P suggest list P prop index.html I space this T U unknown A L space W E list double I L L L E S space learn I F F E S T errands double A S S space O space I D space O L O R space Insert S list S dot index dot lesson. In this tutorial we will listen different ways to define color in CSS. We will listen. Listen selected. F-E-A-R. Ends. Less. In this tutorial we will learn different ways to define color in CSS. Way to define color in. Color define two ways. Different. Learn. Will. Learn. Different. Space D. O2 space circle index dot html. Less. In this tutorial we will learn the different ways to define color in CSS. This. क्या We. लिखा Will. Learn. To. The selected. Space. Learn. Different. Ways. हाँ ठीक है। Less slash. Line feed. और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स कैसे बनाता हूँ, मैं एक यहाँ पे डिव बनाता हूँ, डिव, div level 1 div property index.html editor as autocomplete mode greater v इसमें मैं greater एक space लेट्स से आइडिएशन कर देता हूँ। d suggest list level 1 index.html editor यहाँ पे इसका आईडी का नाम होता है माय my index.html dash ox बॉक्स, greater less और यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ I space sam du list items y my space do list x index.html editor less div equals quote my dash box quote greater I am dummy box less slash div greater इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैं इसका कुछ सीएसएस फाइल में जाता list style हूँ sheet main और मैं blank काम करता हूँ, इसको गेट करता हूँ, तो dot डॉट my माय my dash error box box left बॉक्स race और इसकी कुछ विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करता हूँ। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को ये भी सिखाता हूँ कि विड्थ और हाइट कैसे स्पेसिफाई करते हैं। dot my dash box left race warning blank right race blank तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे विड्थ स्पेसिफाई करना है, मैं लिखूंगा विड्थ कोलन, I D suggest list level 1 with colon semi property docs colon emit style sheet dot css editor अब error मैं यहाँ पे लेट से रखता हूँ 20 300 px level 1 3200 px unit docs style sheet xp 00202 right with colon 300 px semi line और feed यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ I suggest list height property docs style suggest list auto 30 और मैं 00 विड्थ और हाइट को दोनों को सेम ही रखता हूँ ताकि जो है वो एक स्क्वायर बॉक्स मुझे right मिले। race semi space line feed right height colon 300 semi line semi px right height colon 300 px semi h e I g a t colon space 300 space p 300 selected 3 unselected 00 unselected 0 px 0 p right height colon 300 px semi ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। line feed आप लोग आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देता हूँ। इट इज जस्ट लाइक जैसे हम इमेज में विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे एचटीएमएल में, तो सीएसएस में विड्थ और हाइट के लिए प्रॉपर्टीज होती है ना, आप हाइट कोलन विड्थ कोलन करके आप उनकी वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ कि इसमें एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे स्पेसिफाई करता height हूँ। blank तो लेट से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, c o l suggest list columns colons color property docs style suggest list double h wheat number f5 white number ff style sheet इससे क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक व्हाइट कलर का line फॉन्ट feed आ जाएगा, है ना। जो कलर प्रॉपर्टी होती है वो टेक्स्ट कलर के लिए होती है, जो बैकग्राउंड कलर के लिए होता है वो होता है बैकग्राउंड। k suggest list background dash color property style suggest list error लेट से मैं इसमें डालता हूँ ब्लू, blu blue number 000 style sheet dot इस तरीके से। अब सेव करता हूँ और list इसको index.html लाइव सर्वर में ओपन करता menu हूँ। command stop live open with live server alt plus l alt index.html editor as autocomplete multi-line less div equals quote my dash box quote greater css colors tutorial dash Google Chrome window css colors tutorial clickable heading level 1 welcome to C system menu x css colors और मैं इसको भी जूम कर देता हूँ। zoom colon 300% alert heading level 1 welcome to this tutorial I am dummy box I space a m और यहाँ पे देखिए मैं NVDA प्लस F प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कलर बता देगा। Times New Roman 12 pt black on white line left ओके, यहाँ पे बोल रहा है ब्लैक ऑन व्हाइट, ठीक है। index.html index तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, less dot type h less meta char city less meta name equal less link rel equals quote style sheet quote ref equals quote style sheet dot css quote greater less title greater css less slash less dot less h less p greater in this tutorial less slash less div equals quote my dash dot less d I space I d ओके ओके अंडरस्टूड। मैंने यहाँ पे list style आईडी sheet असाइन करी है और वहाँ पे क्लास कॉल कर रहा dot हूँ। my dash box dot m ये dot डॉट माई बॉक्स नहीं, number हैश माई number बॉक्स है, इस तरीके से। css colors tutorial dash css colors tutorial css colors clickable heading level 1 welcome to this I am dummy box space a m अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो हमें ब्लू कलर बोलेगा, Times New Roman 12 pt white on bright blue line left तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा भी अगर लाइक अगर
देख पा रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे अ, एक स्क्वायर बॉक्स आ गया, ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। I, बट हमारा आज का गोल ये नहीं है, हमारा आज का गोल ये है कि ये जो मैंने लिखा width है, colon 3, देखिए, height colon 300 px semi, color colon white semi, कलर वाइज background dash color colon blue semi, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया जो हम सब जानते हैं, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि आप यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी यूज करो और उसके बाद कलर नेम यहाँ पे लिख दो, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। बट हम क्या सीखने वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि अब तक जो हमने सीखा कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कलर डिफाइन होती है, ठीक है, हमारे पास CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से हम कलर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, है ना, जितने भी टाइप के कलर प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि कुछ ना कुछ कलर स्पेसिफाई करने का हमें फंक्शनैलिटी मिलती हो CSS की तरफ से, तो उसमें जो कलर वैल्यू है वो उसको ऐड करने की, उसको डिफाइन करने के हमारे पास है कितने वेज है अलग अलग, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग हियर। तो एक जो मेथड है वो हमें पता है, दैट इज कलर नेम। पर प्रॉब्लम ये है कि कलर नेम यूज करके आप कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही यूज कर सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक कलर्स यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रेड का एक कुछ डेफिनेट, जैसे यहाँ पे लिखा आपने रेड, तो यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा, लिखा ब्लू, ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास से बहुत अलग अलग कलर है, ऑरेंज भी है ना, बहुत अलग अलग, वायलेट है, बहुत अलग अलग कलर से। और हमारे पास है HTML जो सपोर्ट करता है, CSS जो सपोर्ट करता है, तो CSS में हमारे पास है मोर देन 100, लाइक अराउंड 130 135 समथिंग के अराउंड कुछ हमारे पास से कलर नेम से प्री डिफाइन है, जिनको हम यूज करके हम कलर्स लगा सकते हैं। बट जो क्या कहते हैं, विजुअली जब हम कलर लगाते हैं, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम बनाते हैं वेबसाइट, तो एक चीज समझने वाली ये है कि एक वेबसाइट कैसे अच्छी दिखती है डिजाइनिंग के वक्त में। एक वेबसाइट अच्छी दिखती है अपनी क्रिएटिव स्टाइलिंग की वजह से। तो क्रिएटिव स्टाइलिंग आती कैसे है कि आपने जो भी कलर्स वहां पे यूज कर रखे हैं वो सारे के सारे कलर्स में कुछ ना कुछ अलग अलग वेरिएंट हो, जो और वेबसाइट्स में आज जो जो थीम आपके वेबसाइट में मिल रहा है वो किसी और वेबसाइट में ना देखने को मिलता हो आपको, है ना, ये चीज है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब प्री डिफाइंड आपके पास कलर नेम है तो आप उसमें खुद का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वेरिएंट्स कैसे आप बना सकते हो, क्योंकि आपके पास तो जो लिमिटेड कलर नेम है वही है आपके पास, है ना। अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे डार्क ब्लू से थोड़ा सा मुझे डार्क ब्लू से लाइट, लेकिन स्काई ब्लू से थोड़ा सा डार्क, मुझे ऐसा कुछ कलर चाहिए, तो आप ऐसा कैसे रेशियो मेंटेन कर सकते हो, है ना, दिक्कत आ जाएगी। तो बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि अपने कलर वेरिएंट कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। तो कलर नेम के अलावा जो दो और बताने जा रहा हूँ उसमें हमें ये एक तरीके से बोले तो फ्रीडम मिलती है कि हम अपने खुद के कलर वेरिएंट्स बना सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला मेथड में सिखाने जा रहा हूँ अदर देन कलर नेम, वो है गाइस RGB मेथड। अब RGB मेथड क्या होता है मैं समझाता हूँ, देखिए। RGB मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, हमारे वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट क्या है कि फंडामेंटली, ठीक है, फंडामेंटली हमारे पास वर्ल्ड में सिर्फ तीन कलर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इसको हम लोग बोलते हैं RGB, ठीक है। और रेड, ग्रीन, ब्लू मतलब प्योर रेड, प्योर ग्रीन और प्योर ब्लू के अलावा और जितने भी हमारे पास कलर्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो येलो हो, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो वायलेट हो, कोई भी कलर, वो एट द एंड कॉम्बिनेशन है RGB के ही, ठीक है। अगर आप रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों कलर को अगर आप अलग अलग परसेंटेज में मिलाओगे, लेट से रेड को मिलाया 10%, ग्रीन को मिलाया 50%, ब्लू को मिलाया आपने समथिंग परसेंट, है ना, लेट से आपने मिला दिया ब्लू को 40%, इस तरीके से आपने मिला दिया, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ कलर इन्वेंट होते हैं और उनके ग्रेडियंट अलग अलग इन्वेंट होते हैं, उनकी वेराइटीज अलग अलग इन्वेंट होती है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि यहाँ पर जितने भी कलर्स हम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू के कॉम्बिनेशन से ही डिराइव हो रखे हैं। इसका आप लोग एक प्रैक्टिकल वर्क भी कर सकते हो, आप एक स्केच पेन का पैकेज जो है वो परचेज करिए मार्केट से, ठीक है, 30-40 रुपए का आता है।
और वो जो पैकेट है, आप एक पानी का बॉटल लीजिए, कोई भी आप एक लेट से बाउल ले लीजिए पानी का, और उसमें क्या कहते हैं उस स्केच पेन को डुबाइए। हम सबको पता है कि स्केच पेन को अगर हम डुबाएंगे तो इस स्केच पेन का जो कलर है वो पानी में उतर आता है, राइट? ये हम सबको पता है। और आप ऐसे दो तीन स्केच पेन, जैसे फॉर एग्जांपल एक रेड वाला स्केच पेन उठाइए और उसको पानी में डालिए, फिर ब्लू वाला उठाइए उसको पानी में डालिए, फिर ग्रीन वाला उठाइए उसको पानी में डालिए, और देखिए तो कुछ ना कुछ आपको कलर वहां पे मिलेगा, है ना? अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो कुछ कलर मिल जाएगा, आपको ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो कुछ कलर मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ठीक है? अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि इनकी वैल्यू जो है इनकी ही डिफरेंस से हमारे पास अलग अलग कलर वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे दो जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड पॉइंट है, ठीक है? दो बहुत ही सेचुरेशन पॉइंट है हमारे पास। पहला तो ये है, अगर रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों ही कलर अगर एग्जिस्ट नहीं करते, तीनों का ही अमाउंट जीरो है, तो जहाँ पे कोई भी कलर एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे एक ही कलर एग्जिस्ट करता है, ब्लैक। ठीक है? तो अगर रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों का अगर वैल्यू जीरो हम रखते हैं तो हमारे पास ब्लैक कलर मिलता है। पर अगर हम थोड़ा सा भी उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू का थोड़ा सा भी अगर हम लेट से मिलाते हैं, रेशो लेट से हमने क्या कहते हैं रेड 5%, ग्रीन 5%, ब्लू 5% हमने मिला दिया, पहले जीरो था अब हमने इसे मिला दिया, तो ब्लैक से थोड़ा थोड़ा लाइटिश होना शुरू हो जाता है ना। जैसे प्योर ब्लैक, एक तो प्योर ब्लैक कलर होता है, एक डार्क नाइट का कुछ कलर होता है ना, एक नाइट ब्लैक कलर कुछ कलर होता है, ऐसे ऐसे ब्लैक के भी अलग अलग वेरिएंट्स हमारे पास मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है, उसमें थोड़ा सा आरजीबी हमने मिला दिया, थोड़ा सा हमने रेड, ग्रीन, ब्लू का मिक्सचर मिला दिया, तो वहां पे अब सम अमाउंट ऑफ कलर प्रेजेंट है, तो अब वो प्योर ब्लैक नहीं है ना। तो इस तरीके से चीजें हैं वो वर्क करती हैं। और इसी के साथ अगर हम रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों का रेशियो अगर हम 100% रखते हैं, यानी कि रेड भी फुल ऑक्यूपाइड है, ग्रीन भी फुल ऑक्यूपाइड है और ब्लू भी फुल ऑक्यूपाइड है, तो जो कलर हमें मिलता है वो मिलता है गाइस व्हाइट कलर। ठीक है? तो याद रखिएगा, अगर रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों का अगर वैल्यू फुल है तो व्हाइट है, अगर तीनों की वैल्यू जीरो है तो हमारे पास ब्लैक कलर मिलता है। पर अब इसको हम सीएसएस में कैसे कोड कर सकते हैं, ये मिलता है। तो सीएसएस में जब हम कोड करते Bright हैं, race. Background dash color colon. Blue semi. Line feet semi. तो मैं काम करता हूँ, इस ब्लू कलर को हटा देता Blue हूँ, selected. कलर नेम है इसको मैं हटा देता हूँ। Space. Unselect space. Semi. Error. अब देखिए मेरा फोकस कहाँ पे है, मेरा फोकस है यहाँ पे, बैकग्राउंड डैश कलर कोलन और सेमी कोलन के बीच में, Space. Colon. ये कोलन Space. Semi. Error. सेमी कोलन। अब यहाँ पे अगर आपको आरजीबी फॉर्मेट में अगर आपको कलर स्पेसिफाई करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आरजीबी। R. Suggest G. RGB. Function B. ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही आप आर जी बी लिखोगे, मतलब आर जी लिखोगे, बी भी नहीं लिखोगे, Style sheet. CSS. G. Semi. Space. Suggest list. RGB. Function. Docs colon. RGB left parent. तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। RGB relative function. Doc. RGB function. Docs colon. RGB left parent. Dollar red. Dollar green. Dollar blue right parent. Right parenthesis creates a color from red, green, and blue values. Level 1. ठीक है? यहाँ पे VS कोड ने सजेशन भी दे दिया है, एंटर कर रहा हूँ। Style sheet. CSS editor as autocomplete multi. अब देखिए मेरा जो फोकस है वो कहाँ आ गया है, R. Selection removed. E. R. E. D. Comma. Space. G. R. E. E. N. Comma. Space. D. L. U. E. Right parent. ठीक है? इस तरीके से VS कोड हमें दे देता है, देखिए। Bright race. Background dash color colon. RGB left parent. Red, green, blue right parent. Semi. ठीक है? तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है, तो VS कोड ने ना हमें टेम्पलेट क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है? Key. Dash color colon. RGB. Left parent. Red. पहली वैल्यू है रेड के लिए, ठीक है? ये एक फंक्शन है, फंक्शन को हम लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट के स्टाइल में लिखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला Left जो है parent. R. हमारे पास यहाँ पे Red selected. रेड है, तो जो सबसे पहली जो वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे वो रेड के लिए करोगे, ठीक है? उसके बाद कॉमा, Comma. Red unselected. उसके बाद सेकंड वैल्यू Green. ग्रीन के लिए, R. और उसके Comma. बाद कॉमा, उसके बाद फिर थर्ड वैल्यू Blue. ब्लू के लिए। Comma. Green. Comma. Red. Left parent. R. तो Red selected. और ये तीनों वैल्यू रिक्वायर्ड है, अगर आपको ब्लू नहीं देना है तो ब्लू को छोड़ नहीं सकते हो, ग्रीन नहीं देना तो ग्रीन को छोड़ नहीं सकते, आपको जीरो लिखो पर आपको लिखना तो पड़ेगा ये, ठीक है? तो लेट से अगर मैं चाहता हूँ कि रेड कलर क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ इसका करता हूँ रेड कलर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो रेड कलर के लिए मुझे सिर्फ रेड चाहिए और ग्रीन और ब्लू को जीरो रखना है और रेड को मुझे फुल रखना है। तो यहाँ पे जीरो का मतलब तो जीरो होता है, पर फुल जो है वो यहाँ पे
255 तक इसकी वैल्यू जाती है। 0 से लेकर के 255 तक के बीच में हम यहाँ पे वैल्यू की रेंज स्पेसिफाई कर दें। यानी कि अगर मैं रेड के पोजीशन पे 255 अगर नंबर लिखता हूँ, दैट मीन्स मैं रेड जो है वो फुल्ली चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता R हूँ red until E. R. R left parent. R red selected. 2 2 unselect 5 5 255, 5 comma space G. Green selected. ग्रीन को मैं रखता हूँ 0, 0 0 0 space 0 comma space B. Blue selected. ब्लू को रखता हूँ 0 0 right parent semi unselect. एक बार ये देख लीजिए, Symbol level all. ये देखिए Right background dash color colon RGB left parent 255 comma 0 right parent semi. इस तरीके से Symbol level most. सेव करता हूँ। CSS colors. अब देखिए यहाँ I पे am dummy box. I space A M times New Roman 12 PT white on bright blue line left. एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, CSS color clickable I am dummy space A M times New Roman 12 PT white on bright red line left. तो यहाँ पे ब्राइट रेड नाम से एक कलर आ गया। ठीक है, आई System होप कि menu. आप लोग समझ पा रहे Style होंगे। sheet dots. अब फटाफट बताइए कि अगर मुझे ब्लू कलर डालना है तो मैं क्या करूंगा? यस, तो मैं यहाँ पे रेड को 0, ग्रीन को 0 और ब्लू को 255 कर दूंगा। आइए चलिए करके देखते हैं। Key. That color RG left parent 2 255 selected 0 0, 0 0 0 comma 0 0 left parent 0 0 comma 0 space 0 0 selected right ये parent 0 तो ऑलरेडी है, semi right parent 0 ये 0 कटा 2 के 5 5 255 200 right race background dash color colon RGB left parent 0 255 right parent semi line feet semi right 5 5 2 space comma 0 left D left pair 0 वो गलती से 0 0 comma रेड का space हट गया था, मैंने रेड का लगा दिया। ये देखिए, right background dash color colon RGB left parent 0 0 255 right parent सेव करता हूँ। CSS colors tutorial dash Google Chrome window CSS I am dummy box space AM times New Roman 12 PT white on bright red line left इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, CSS color clickable space AM times New Roman 12 PT white on bright blue line left तो अब यहाँ पे ब्लू कलर आ गया, style sheet dots वैसे ही ग्रीन कलर। अच्छा, अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर फॉर Key एग्जाम्पल color colon RGB left parent 0 ये 0 है तो रेड को मैं 0 रहने देता हूँ। comma 0 अगर मैं ब्लू और ग्रीन space 0 दोनों को comma मिक्स कर दूं, लेट्स 0 से 2 5 5 ब्लू भी फुल, ग्रीन भी फुल, तो देखते हैं कौन सा कलर इन्वेंट right होता है। race background dash color colon RGB left parent 0 255 right parent सेव करता हूँ, CSS रिफ्रेश करता हूँ, CSS अब देखते हैं क्या आता है। clickable I space AM times New Roman 12 PT white on bright aqua line left ये aqua नाम से कुछ क्या कहते हैं, हमारे पास से कलर आ गया। style ठीक है, line ओके, feet semi right parent 5 5 2 space ठीक है। तो ये तो हो गया कि ब्लू और इसको हम मिक्स करेंगे तो क्या 2 होगा। अच्छा, 5 ग्रीन और रेड को मिक्स करने पे क्या होता है, line feet semi right parent ये देखते हैं। 255 to 0 0 0 space comma 5 5 2 space comma 0 comma 0 तो लेट्स error 2 5 250 right rate background dash color colon RGB left parent 255 0 right parent रेड और ग्रीन को मिक्स किया। CSS colors tutorial CSS colors clickable I am space AM times New Roman 12 PT white on bright yellow line left तो यहाँ पे येलो, तो रेड और ग्रीन को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो है वो येलो कलर बनता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू कम करता जाऊंगा, लेट्स से space 2 5 5 comma 5 to 5 selected 2 selected 1 0 0 इसको मैंने 1 100 कर दिया ग्रीन right को, background dash color colon RGB left parent 255 100 0 right parent सेव करता हूँ। CSS color clickable I am space AM times New Roman 12 PT white on bright orange line left तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर आ गया। तो समझ रहे हैं, अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा I कैसे। am dummy box और सबसे कमाल की बात ये है कि अब जैसे ये ब्राइट ऑरेंज है, अगर मैं ऑरेंज कलर लिखता ना वहाँ पे कलर नेम में, तो मुझे सिर्फ एक स्टैंडर्ड ऑरेंज कलर जो हमें दिखता है सिर्फ हमें मुझे वो मिलता। पर अब मैं येलो से ऑरेंज के बीच में चाहूँ जितना उतना वेरिएंट बना सकता हूँ। जैसे पूरा येलो हो पर थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप से इफेक्ट आए, या पूरा ऑरेंज हो बट थोड़ा सा येलोइश टाइप का इफेक्ट आए, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। तो ये जो कंट्रोल है style sheet.cs वो मुझे यहाँ पे आरजीबी के थ्रू मिल जाती है। तो मैं key इसको एक काम करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। /error right race error // background dash color colon RGB left parent 255 line feed // back blank // line feed semi blank // background dash color colon RGB left parent 255 100 0 blank // back // B error / star style sheet.css edit star B line feed star blank star background dash color colon RGB left parent 255 100 0 right parent semi star / blank इस तरीके से तो मैंने इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया ताकि फिर आप लोग इस कोड को एक्सेस कर दें तो आपको दिक्कत ना हो।
अब ये तो हो गया पहला तरीका। अच्छा, एक और चीज है, Slash star backline fee slash star semi right parent 0 यहाँ पे मैंने पहले स्पेसिफाई किया था रेड ग्रीन उसके बाद ब्लू। space 0 एक right parent फोर्थ वैल्यू भी है comma जो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते space हो, दैट इज ट्रांसपेरेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। 1 का मतलब होता है फुल्ली ट्रांसपेरेंट, 0 का मतलब होता है नो ट्रांसपेरेंट। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, पर आप इसको मैनेज कर सकते हैं 0.1, 0.2, 0.4, 0.5 अप टू 1। अच्छा, space ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, कहाँ पे काम आता है? अच्छा, जैसे डायलॉग बॉक्स आप लोगों ने कभी क्रिएट किया होगा, है ना, देखा होगा। तो डायलॉग बॉक्स में इफेक्ट क्या आता है? जैसे हमारे पास कुछ पॉपअप आना होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है कि CS हमारे पास ये पूरा जो क्या कहते हैं, हमारे पास बैकग्राउंड है नॉर्मल पेज का, ये ब्लर हो जाता है। और इस ब्लर्ड बैकग्राउंड के ऊपर एक छोटा सा सेंटर में पॉपअप अपीयर होता है। कोई मैसेज अगर डिस्प्ले करना है, कुछ करना, जैसे एक मैसेज ही मान लीजिए, आर यू श्योर दैट यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, इस तरीके से। तो ऐसे कामों के लिए जो है वो आता है, ठीक है। जैसे ड्राइव में अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ फाइल डिलीट करते हैं तो उसके लिए काम आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ, लेट्स से new tab dash मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्राइव ओपन करता हूँ, dr drive.google.com dr selected Google Drive navigation landmark button जैसे skip to मान main content यहाँ button पे keyboard ड्राइव, shortcuts get notifications on your desk अब लेट्स से मैं यहाँ पे out of table इधर जाता हूँ, nav keyboard says banner search ready click of settings drive gem Google app Google account call new menu button collapse sub menu expand new folder alt plus file upload alt new folder alt plus cnf लेट्स से मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। new menu button new folder dialog new folder अब देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर डायलॉग, अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या है, पूरा जो मेन बैकग्राउंड था वो ब्लर हो गया, पर बीच में सेंटर में हमारे पास एक बॉक्स आ गया है जिसमें कि एड बॉक्स है, जहाँ हम फोल्डर नेम लिख सकते हैं और उसके नीचे ओके और कैंसिल का बटन है। और जब मैं इस पे एस्केप की को प्रेस करूंगा तो frame about colon blank new वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो यही जो इफेक्ट है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो लेयर बनानी पड़ती है। एक बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स का जो पीछे वाले बैकग्राउंड को कवर करे, बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो वो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हम देते हैं। तो क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक रख देते हैं, पर ट्रांसपेरेंसी हम उसकी 0.4 0.5 के अराउंड करते हैं ना, तो इसलिए काम आता है। css color तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, desktop 2 op studio 14 of 26 सॉरी, desktop circle style sheet dot circle style comma 0 comma space right parent यहाँ पे 0 0 लिख देता हूँ ताकि 0 ट्रांसपेरेंट हो। blank right brace blank तो ये तो है guys पहला मेथड जो हमने यूज किया, ठीक है। सॉरी मुझे जुकाम है थोड़ा सा। अच्छा, अब हम सीखते हैं गाइस यहाँ पे तीसरा जो मेथड होता है कलरिंग के अलावा, दूसरा मेथड होता है, यानी कि टेक्निकली तीसरा मेथड, वो होता है गाइस हमारे पास हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल में क्या होता है मैं समझाऊँ, देखिए नोटपैड ओपन करते हैं। run dialog type LTE PAD text on desktop list op studio 14 program 5 untitled unmarked अब देखिए मैंने पहले आपको सिखाया ही restore unavailable text आपको, untyped ताकि आप लोगों को हेक्साडेसिमल समझने में आसानी हो। देखिए blank हेक्साडेसिमल में क्या होता है अगर समझाता हूँ। हेक्साडेसिमल एक तरीके से वे होता है कि वैल्यूज को डिफाइन करने का। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो हम लोग यूज करते हैं वो तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं 0 0 से 0 dash 9 9 तक। 0 dash 9 ये होता है गाइस हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना, जिसमें हम 0 से लेकर के 9 तक हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 लिखना है तो मैं 10 लिखूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 99 लिखना है तो मैं 99 दो बार लिखूंगा। मतलब मैं 0 से 9 के बीच में ही कोई ना कोई नंबर कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा और मेरे पास डिजिट्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 0 से लेकर के 9 तक कितने डिजिट्स अवेलेबल है, 10 डिजिट्स अवेलेबल है, इसलिए इसको डेसिमल बोलते हैं। blank carriage लेकिन returned हेक्साडेसिमल का मतलब ये होता है कि 10 और क्या कहते हैं 6, है ना, मतलब 0 से 9 तो है ही, प्लस और क्या कहते हैं 6 जो है वो हमारे पास है डिजिट्स अवेलेबल होते हैं। तो 6 कौन कौन से होते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तो हो गया। इसके अलावा अगर मुझे 10 स्पेसिफाई करना है तो मैं लिखूंगा ए। अगर मुझे 11 स्पेसिफाई करना है तो मैं लिखूंगा बी, 12 के लिए सी, और 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, 15 के लिए एफ। ठीक है, तो प्रैक्टिकली 0 से लेकर के 15 होते हैं, टेक्निकली 16 डिजिट्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। blank अब हेक्साडेसिमल वैल्यू जब भी हमें स्पेसिफाई करनी होती है तो वी ऑलवेज यूज हैश सिंबल, number ठीक है। हैश हेक्सा है ना, तो रिलेटेबल इससे यूज करते हैं।
अब इसके बाद आपको आरजीबी वाला फॉर्मेट यूज करना है। कैसे यूज करना है आरजीबी वाला फॉर्मेट? इसमें जो सबसे पहले 2 डिजिट होंगे वो होंगे रेड के लिए, ठीक है? ये 6 डिजिट का कोड होता है, तो जिसमें 3 पेयर होते हैं, 2-2 के, 2-2 डिजिट के 3 पेयर होते हैं। तो जो सबसे पहला पेयर है, मतलब फर्स्ट जो 2 डिजिट्स होंगे, इट विल बी डेडिकेटेड फॉर रेड कलर। देन उसके बाद जो सेकंड 2 डिजिट्स होंगे, यानी कि प्रैक्टिकली थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, वो डेडिकेट होंगे हमारे पास से ग्रीन के लिए। एंड लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो ब्लू के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लैक कलर अगर क्रिएट करना है, तो आई विल राइट हियर Number blank 00। 00 That means I'm keeping red color 0%. Then again, 00 then I'm keeping green 0, and then last 00 0 0। number 000000. तो अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे 6 जीरो है, ठीक है, प्रैक्टिकली। बट टेक्निकली यहाँ पे क्या है? टेक्निकली यहाँ पे हर एक जो जीरो का पेयर है वो रेड और ग्रीन और ब्लूज की रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है वो कंटेन कर रहा है, ठीक है? तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। Stylesheet.cs bright race blank. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन, EAK suggest list background dash color style suggest list मैं यहाँ पे लिखता error हूँ हैश number stylesheet.cs हम error 0 0000 00 stylesheet.cs background dash color colon number 000000 semi bright race सेव करता हूँ, CSS colors tutorial CSS color यहाँ पे रिफ्रेश करता CSS हूँ colors एंड यूसी। I am dummy by space AM times New Roman 12 PT white on black line left यहाँ बोला व्हाइट ऑन ब्लैक, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ब्लैक। stylesheet वैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्रीन कलर स्पेसिफाई करने से हाउ यू विल डू? bright background dash color line feed semi सो यहाँ पे 000000 selected मैं लिखूंगा रेड 00, 00 यानी कि error रेड को मैंने लिखा है 0। देन ग्रीन को एफ यानी कि फुल, F number 0 F और उसके बाद फिर ब्लू को 00 0। 0 देखिए, right background dash color colon number 00 FF00 semi सेव करता हूँ, CSS colors CSS color clickable I space AM times New Roman 12 PT white on bright green line left यहाँ पे इस तरीके से कलर्स यहाँ पे आ गए, stylesheet.cs ठीक है? लेकिन अगर आपने हेक्साडेसिमल के थ्रू अगर आपने फॉर एग्जांपल कलर डिफाइन करा है, तो फिर आपको एक अलग से प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी ट्रांसपेरेंसी के लिए, दैट इज कॉल्ड ओपेसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है? तो वो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नाउ द पॉइंट इज कि क्या आपको हर एक कलर नेम याद रखना है, या आपको जो है वो यहाँ पे क्या करना है? मतलब सी, देखिए, अगर आप कलर नेम के थ्रू अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बटन का कलर आपको डिजाइन करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा है कि बटन का कलर तो आप रख सकते हो डायरेक्टली कलर नेम से, ब्लू ग्रीन कुछ भी रख सकते हो। बट अगर कोई थीम का कलर, लेट्स से आप अपने फोरग्राउंड का कलर चाहते हो, बैकग्राउंड का कलर चाहते हो, मेन मेन कंटेंट का, तो उसके लिए आप कलर वेरिएंट यूज कर सकते हो। अगर आपको कलर नेम के थ्रू करना है, तो उसमें तो क्या है कि आप VS कोड का सजेशन यूज कर सकते हो, और वन बाय वन जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसको ट्राई कर सकते हो और किसी से दिखवा सकते हो किसी असिस्टेंट से। बट अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई कलर वेरिएंट चाहिए, तो गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक पूरी की पूरी टेबल मिल जाएगी, जिसमें 500 600 1000 कलर वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। वहां से भी आप कलर कोड चूज कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आप AI का भी हेल्प ले सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है? तो ये जो है हमारे पास चीजें होती हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। और CSS color तो ठीक है ना? और गूगल पे सर्च करके आप निकाल सकते हो। और stylesheet.css stylesheet तो आज की वीडियो में ठीक है गाइस, इतना ही रखते हैं। और इसके अलावा अगर मैं मुझसे कोई टॉपिक अगर छूट रहा हो तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है? जो मैं कवर नहीं किया, मैं भूल गया, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। और अगली वीडियो में हम फिर सीखेंगे गाइस CSS में लेट्स से स्पेसिंग को कवर कर लेंगे ना, मार्जिन पैडिंग इन सब को हम कवर कर लेंगे। अच्छा, आप कमेंट में बताइए स्पेसिंग को कवर करें या टोपोग्राफी को कवर करें। टोपोग्राफी यानी कि फॉन्ट स्टाइलिंग और ये सब। मुझे लगता है सबसे पहले टोपोग्राफी को कवर कर लेते हैं, स्पेसिंग वगैरह हम बाद में रख सकते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है गाइस, जो भी आप लोग का डिसीजन आप मुझे बताइएगा कमेंट में, फिर उसके अकॉर्डिंग अगली वीडियो आएगी, ठीक है? फाइन।